The Delhi government is looking for the next generation of entrepreneurs. And guess where they're looking? In our classrooms, in high schools, in the class 11 and class 12 classrooms of Delhi's government schools. And if you don't believe me, you can watch Delhi's government school students, not MBA graduates, not college students, but actually high schoolers, senior school students, pitch their innovative business ideas to India's top CEOs and top entrepreneurs and industrialists and investors, like angel investors, on the 28th of November, on Sundays at 7 p.m. right here on NDTV. And joining me now is Delhi's Deputy Chief Minister, Mr. Sisodia. Thank you so much. This is a very ambitious project. How did it start? What does it entail? It started with the philosophy कि देश में दुनिया में इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी मार्केट जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब कंपनियों को सक्सेसफुल होने के लिए और टॉप पे पहुंचने के लिए 100 साल या 50 साल का, 2 जनरेशन का समय, 3 जनरेशन का नहीं चाहिए. आज कोई बच्चा कंपनी स्टार्ट करता है कॉलेज के बाद में और वो अगले 5 साल 10 साल में देश की अपने सेक्टर की टॉप नॉच कंपनी बन जाती है. सो वी कैन अज्यूम कि दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन देयर क्लासरूम्स टुडे are the CEOs of biggest companies or most successful companies down line 10 years. 10 साल बाद की सबसे सक्सेसफुल कंपनी के CEO को आज हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं. तो let's treat him or her like a CEO. हम उसको अभी ऐसे सोच रहे हैं कि वो कहीं जाएगा, पढ़ के कोई एग्जाम देगा, नौकरी पास करेगा, फिर नौकरी ढूंढेगा. नहीं, we have to understand कि इन्हीं में से कुछ CEOs निकलेंगे. We have to treat them as CEO of future companies. तो हमने पूरा का पूरा करिकुलम एक डिजाइन किया 9 to 12th के लिए. That is called entrepreneurship mindset curriculum. One component of that is Business Blaster, where we have challenged those students who are the future CEOs of the future companies कि भाई आप आइए और हमारे साथ में बिजनेस करिए, बिजनेस आइडियाज लेके आइए. If your ideas are promising, if you want to do something new or in a new style, we'll fund you. So government is funding them with 60 crore rupees with seed money. 60 crore rupees का हमने कैपिटल सीड रखा है, जिसको गवर्नमेंट के स्कूल्स के बच्चे स्टार्टअप बना के लेके जा रहे हैं. और ले गए हैं, सब ले गए, पूरा ले गए. So, who are they going to be pitching their business ideas to? So, if you're saying India's top CEOs or investors, I'm assuming these are all people established, they have full-time jobs, they're busy. Who are they? How much time? Like, how did you convince them? Who are they going to be? Give us an idea. See, it's like 2-3-fold program. One is that they pitch to the school, they get the seed money from the school authorities. That is one stage. सेकेंड स्टेज व्हेन दे मूव फॉरवर्ड, उनको थोड़ा सा सक्सेस मिलता है, थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लगता है उनका आइडिया, तो वी ब्रिंग देम टू अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड दिस बिजनेस ब्लास्टर्स. यहाँ पे वी इनवाइट लॉट ऑफ CEOs, सिटिंग CEOs ऑफ द कंपनीज, लॉट ऑफ प्रमोटर्स ऑफ द कंपनीज. दे कम, दे आर इन्वेस्टर्स एक्चुअली, दे वांट टू इन्वेस्ट. सो दे सी सम प्रॉमिसिंग स्टार्टअप coming up from the students of a grade 11 or grade 12. They want to invest into it. They want to support that. They want to coach those future CEOs. So ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है बिजनेस ब्लास्टर में कि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको ये देख के अच्छा लग रहा है कि हम आज एंटरप्रेन्योर बने हैं. अगर हमें 11th-12th में वो पढ़ाई मिल गई होती तो और मजा आ जाता. अब उनको लगता है कि 11th-12th में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको तो और सपोर्ट करना चाहिए. तो दे आर देयर टू सपोर्ट दैट. So, and how do they balance school with this? Actually, most of the students are telling कि we are learning more because of this, because all this exercise, this whole program called Entrepreneurship Mindset Curriculum and then this Business Blaster, this is helping them to develop some mindset. Like real life skills. Real life skills. उनका critical skills बढ़ रहे हैं, उनकी abilities बढ़ रही हैं. In return, उनका अपना education system काफ़ी अच्छा हो रहा है, अपना education उनका, और they are able to focus more, they are able to be more critical to their education, their own education. दूसरा ये भी है कि it's part of their education also. We want them either to succeed or to fail and learn from the failure. Because learning from the failure and making them prepared for a larger win is also our goal. It's not about कि हम केवल और केवल बड़े बिजनेस आइडियाज देके और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां निकाल देंगे. कुछ निकलेंगी. सेलेक्टेड कंपनियां जो आज 11th-12th के बच्चे बना रहे हैं, आने वाले समय की बड़ी कंपनियां बनेंगी और ये लोग उनके प्रमोटर्स हैं. लेकिन larger section of the kids who are doing this, or many of them would be learning from their failures also, and we want them to learn from their failures so that they are ready to win big battles in life. That's fascinating you mentioned that, because you're saying 60 crores and clearly not all of the projects will succeed. which is the reality in real life also. So what happens, because ये
पैसे तो, I mean, it's not their personal money. So how do the kids actually learn to take risks, or when to take risks, or when they can invest this? Maybe it's better not to go in for an idea. No, they are learning. You see, when you do something, you can only learn from success or failure. That's the basic principle of learning, and especially when you want to have critical entrepreneur mindset. You have entrepreneur कौन होता है? Entrepreneur वही होता है जो अपने failure से भी learn करने की हिम्मत रखता है. तो अगर आप 11th-12th में 10,000, 20,000, 30,000 रुपए इन्वेस्ट करके अपने एक बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उसमें फेल होते हैं, अच्छा है, आप फेलियर से भी लर्न करते हैं, बिकॉज आपको आगे जाके कुछ करना है तो वहाँ की लर्निंग आपकी यहाँ से बन रही है. सो इट्स अ बिग डील हियर ऑल्सो. सो हमारे पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में दो चीजें प्रॉब्लम हैं. एक तो फेलियर से सीखना नहीं सिखाया जाता. फेलियर हो गया तो खत्म हो गए आप. ए बी, पढ़ाई का मतलब केवल और केवल एक नौकरी ढूंढना है. आप आईआईटी कर लेना, एक कंपनी का बड़ा सीईओ बन जाना, कुछ नौकरी कर लेना कहीं पे बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव की, या कोई गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर लेना. 99.9% ऑफ द एम्बियंस दैट आर स्कूल स्टूडेंट्स आर सराउंडेड विद इज फुल ऑफ जॉब सीकर्स माइंडसेट. पेरेंट्स चाहते हैं, टीचर्स चाहते हैं, कलीग्स चाहते हैं, पीयर प्रेशर है, जॉब सीकर जॉब सीकर जॉब सीकर. मेरा सवाल यह है कि अगर स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे जॉब सीकर ही बनेंगे तो जॉब प्रोवाइडर कौन बनेगा? और जॉब प्रोवाइडर अगर हम अपने स्कूलों से नहीं देंगे तो बेरोजगार लोगों की फौज तो बाहर खड़ी होती रहेगी. और आप बड़ी बड़ी बातें करते रहिए, हम जॉब्स के लिए करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. तो एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग एजुकेटेड सोसाइटी, एजुकेटेड यंग माइंड्स टू द कंट्री, टू द सोसाइटी, तो आपको एजुकेटेड जॉब क्रिएटर भी देने पड़ेंगे. और ये इट्स अ ड्यूटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम कि एक बच्चा जो आज पढ़ रहा है हम उसको दोनों ऑप्शन दें लाइफ में. अभी हम उसको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम पढ़ लो, ठीक से नौकरी कर लेना. हम कह रहे हैं कि तुम पढ़ लो, नौकरी भी कर सकते हो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो. नौकरी करोगे तो एक ही नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे तो 10 नौकरियां क्रिएट भी कर रहे होगे. Yes, but like you said, the most important lesson is teach our kids how to get up once you fall. Yes, that's the most important thing. But what you're planning and trying is so ambitious, because clearly we have to rewire the way we think. We all grew up learning by rote, like you said. You want to be a doctor or then it changed to like engineer, then it changed to be an MBA graduate. So then what about teachers, etc.? How does the whole ecosystem work to adjust to this new world? क्योंकि उनको भी train करवाना पड़ेगा, right? Because and I don't blame teachers. They are teaching the way they were taught to teach. And they have been asked to teach. They are teaching the way they have been asked to teach so far. तो जब हमने अपने टीचर्स के साथ काम करना शुरू किया तो आप देखेंगे कि ये हमने अपने गवर्नमेंट के ईयर 1 में शुरू नहीं किया. 2015 में दिल्ली में सरकार आई थी. 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक हम अपने टीचर्स को खूब देश विदेश में ट्रेनिंग कराते रहे. आज हमारे प्रिंसिपल्स IIM में ट्रेनिंग करके आए हैं. आज हमारे स्कूल के लगभग 70% प्रिंसिपल्स वो हैं जिनकी IIM में ट्रेनिंग हो चुकी है या ऑन कार्ड्स है. अगले 2, 3, 4, 6 महीने में सबका शेड्यूल बना हुआ है. सो वहां से भी वो सीख रहे हैं. और रोट लर्निंग से बाहर निकल के कैसे प्रैक्टिकल किया जाए. लेकिन अब हमने गोल्स भी बदल दिए हैं. अल्टीमेटली क्या था, आप टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते. यू राइटली सेड, आपका पूरा सिस्टम आपसे चाह क्या रहा है. सिस्टम कह रहा है कि आप अपने बच्चे को ठीक से पढ़ाइए, हम उसकी रोट लर्निंग की जेई में एग्जाम लेंगे, नीट में एग्जाम लेंगे, या कोई एंट्रेंस टेस्ट लेंगे उसका. हमने इस सिस्टम को भी थोड़ा सा भी क्रैक करने की कोशिश की है. एंड आई होप इट विल शो रिजल्ट्स इन. इसको फिर ब्लास्ट होगा इसमें. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये जो बच्चे अभी 11th 12th में अपने बिजनेस ब्लास्टर आइडिया पे काम कर रहे हैं, इनके बिजनेस को हम आगे लेके जाएंगे. इनको हम इन्वेस्टर्स दिलवाएंगे. दैट इज वन रोल दैट वी आर प्लेइंग, एज यू सेड, बिजनेस ब्लास्टर जैसे टीवी प्रोग्राम्स में. अदरवाइज भी हम इनका बड़े स्केल पे एग्जीबिशन करेंगे जहां और इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करेंगे कि देखो ये फ्रेश आइडियाज हैं, फ्रेश सीईओज, फ्रेश स्टार्टअप्स हैं, इनमें आप इन्वेस्ट करिए. दैट इज पार्ट 1. पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी एंड आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि इनके भी जो टॉप बच्चे हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्मिंग बच्चे होंगे, उसका एक एल्गोरिथम हम बना रहे हैं. उन बच्चों को हम डायरेक्ट एडमिशन दिलवा रहे हैं DTU में. तो अभी रोट लर्निंग का एक एग्जाम क्रैक करके 3 घंटे का जेई का एग्जाम क्रैक करके उस बच्चे को जो एडमिशन मिलता था, नॉट जेई एग्जैक्टली, कैट का एग्जाम, कैट और भी एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उस बच्चे को अब NSUT, DTU, IGDTUW, IP यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इन सब में हमने सीट्स क्रिएट करा दी हैं कि जो बच्चा इस कंपटीशन को बीट करके टॉप में आएगा उसको आप डायरेक्ट एंट्री दोगे, उसको कोई और एग्जाम देने की जरूरत नहीं है. This was going to be my question to you, because you kids have an idea, you provide them investors, you provide them seed money, but what happens when they graduate? They're with you for 2 years. Does the project get abandoned? Does the child get abandoned? Now they're out of a Delhi government school. So you're saying
You will be with them for how Actually, long? उनके लिए सीट्स क्रिएट करा दी गई हैं। सारे यूनिवर्सिटीज में सीट्स क्रिएट हो गई हैं और जब ये बच्चे इस साल जो भी 11th-12th में हैं, खासतौर से 12th में बच्चे हैं, ये बच्चे जब अपने आप को एग्जिबिट कर देंगे और प्रॉमिसिंग दिखेंगे, सक्सेसफुल होंगे, तो इन बच्चों को यूनिवर्सिटीज लेने के लिए तैयार बैठी हुई हैं, डायरेक्ट विदाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नाउ। सो दिस इज वन थिंग। इसमें इंटरेस्टिंग एडअप ये भी है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चे 11th में हैं, 11th के बच्चों ने भी अगर कोई प्रॉमिसिंग काम कर लिया और यूनिवर्सिटीज को पसंद आ गया और उनके एल्गोरिथम पे फिट होता है, तो अभी वो 12th करेंगे, लेकिन उनकी सीट 12th करने के बाद के लिए अभी से सिक्योर हो जाएगी। दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम। सो जो आपने पूछा कि अल्टीमेटली तो उनको रोड लर्निंग वे पे जाना है, कहीं एडमिशन लेना है, पढ़ाई करनी है, अल्टीमेटली ये उनकी पढ़ाई का हिस्सा है और एक ऐसी पढ़ाई का हिस्सा है। मैंने यूनिवर्सिटीज को भी कहा है कि ये जो बच्चे आपके पास में आने वाले हैं, ये रोड लर्निंग के प्रोडक्ट नहीं है, ये अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बना के आ रहे हैं। तो प्रिपेयर योर कोर्सेज टू हैंडल देम, क्योंकि ये आपके आगे थ्योरीज में नहीं अटकेंगे, ये आपको कह देंगे आप गलत पढ़ा रहे हो। तो यूनिवर्सिटीज को भी मैंने कहा कि अपनी तैयारी रखिए। So let me ask again, is this only for students of commerce stream, economic streams? Humanities, STEM, commerce, everybody. Everybody It's has for to do it. everybody. And We is there a have- difference? Are you seeing like girls taking it up more or less or anything like that? It's No. both ways. It's both ways. मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ। 3.5 लाख बच्चे हैं हमारे पास में। 3.5 लाख एग्जैक्ट नंबर है बच्चों का। उनमें से लगभग सारे बच्चों ने, और हमने इसमें पेरेंट्स की एनओसी भी मांगी थी, तो सारे बच्चों ने पेरेंट्स से एनओसी लाके अपने बिजनेस आइडियाज पिच किए हैं, उन पे काम करने के लिए सीड मनी ले ली है। और ये पिच किए हैं तो ऐसे नहीं कि उनको सीड मनी ऐसी मिल गई, उनको क्लास में ग्रिलिंग हुई है, स्कूल लेवल पे उनकी काफ़ी ग्रिलिंग हुई है, उसके बाद कुछ आइडियाज़ को रिजेक्ट भी किया गया है। तो 51,000 बिजनेस आइडियाज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स हैव एक्चुअली बीन अप्रूव्ड एंड सीड मनी हैज़ बीन गिवन। और इनको अब आगे आके धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक एक बच्चा काम करना शुरू करेगा उस पर। And so is it only the brief is just to earn a profit? What is the brief? Brief is twofold. One is that yes, we want them to succeed. We want to learn from the success, and success actually effectively means कि आपका आइडिया इनोवेटिव था कि नहीं था, आपने फाइनेंशियल गेन्स किए कि नहीं किए, लॉस कितना हुआ। बट since it's a part of the curriculum, so in a curriculum, as I said in the earlier answer also, कि failure also is part of the curriculum, कि अगर आप फेल होते हैं, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, अगर आपका आइडिया बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है, आपको प्रॉफिट तो हो जा रहा है पर आपको लग रहा है कि आपका मार्केट नहीं मिल रहा है, बहुत सारी लर्निंग होंगी। इट्स नॉट अबाउट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी फेलियर। हो सकता है थोड़ा बहुत आपने से 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है आपका कैपिटल मनी, आपका रेवेन्यू 40,000 का हो जाए, लेकिन हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ये करेंगे, इस फेलियर से भी सीखेंगे एक। और दूसरा, आपने गर्ल्स के बारे में भी पूछा था, गर्ल्स की पार्टनरशिप इतनी ज़्यादा है इसमें। आई कैन गिव यू एग्जांपल, जो अभी प्रोग्राम में भी आएंगी लड़कियां, इसमें टीवी प्रोग्राम जो आएगा, 2 लड़कियां हैं जिनको पेंटिंग बनानी आती थी। उन्होंने पेंटिंग बनाने, जब उनको पता चला कि इन्वेस्टमेंट मनी मिल रहा है, सरकार से सीड मनी मिल रहा है, तो उन्होंने अपनी पेंटिंग बनाने की कंपनी खोल ली, स्टार्टअप खोल लिया, अपनी पेंटिंग डिजाइन करती हैं। साथ साथ में उन्होंने अपने मोहल्ले की आसपास की 20 महिलाओं को और बोर्ड पे ले लिया, जिनको पेंटिंग आती है, जिनको स्केचिंग आती है। और ये नई जनरेशन है, सोशल मीडिया पे रहती है, फैंटास्टिक। तो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, फेसबुक को यूज कर रहे हैं, देश भर से, दुनिया भर से कस्टमर्स लेके आ रहे हैं। और 12वीं क्लास की लड़कियां अपने आसपास की 20 महिलाओं को भी नौकरी दे रही हैं और फैंटास्टिक काम कर रही हैं, अपनी पेंटिंग का भी सेल कर रही हैं और उनकी भी पेंटिंग सेल करा रही हैं। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। वन गर्ल, अनदर, क्योंकि आपने लड़कियों की बात पूछी थी, देयर इज दिस ग्रुप कॉल्ड, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द ग्रुप, बट वो रिफर्बिशिंग ऑफ मोबाइल का बिजनेस उन्होंने शुरू किया है, कि बहुत एकदम डेड मोबाइल खरीदते हैं किसी से, मार्केट में उसके कुछ कंपोनेंट मिलते हैं, उसको कंपोनेंट उसमें डालते हैं, उसको यूजेबल बना देते हैं, और फिर लो एंड मोबाइल यूजर जो है, जैसे बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लास में हैं, गरीब आदमी है, गार्ड है, रिक्शे वाला है, उसको अगर 3-4 हज़ार में मोबाइल मिल जाता है, एक अच्छा मोबाइल, तो उसके लिए अच्छा है, वो उसको यूज़ कर रहे हैं। सो आई वाज टॉकिंग टू दिस गर्ल्स कि अब आगे आपका क्या प्लान है, क्योंकि दे हैव कम टू पिच फॉर मोर इन्वेस्टमेंट इनटू इट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो हम प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट दिलाने में मदद कर रहे हैं। तो दिस गर्ल सेड कि देखिए सर, हमें ना अभी अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो उस कंपनी, अब हम तो पढ़ रहे हैं, तो हमें अपनी कंपनी के लिए इंजीनियर्स चाहिए, तो हम इंजीनियर्स हायर करेंगे। सो 12वीं क्लास की जिस एज ग्रुप में लड़की इंजीनियर बनने का सपना देख रही होती है, मेरे स्कूल में एक लड़की इंजीनियर्स को हायर करने का सपना देख रही है।
So this is the big change that is happening there. And this girl's life has changed Yeah. forever because now she's learning, even to give orders to people above her. That's really great. So, Mr. Sisodia, you launched this in 2019, I think, and then like everything else, the pandemic hit. So how was the project affected? What were the challenges, pandemic-related challenges? How were the kids affected, their mindsets? Because you're telling them that, look, when you fall, you have to get up. But when you're hit by something like a pandemic, what were the... Basically, pandemic gave us all of us an opportunity to pause and think also. It was like blessing in disguise, but yes. So हमने जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया था, उसमें हमें पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, फिर हमने सोचा कि पहले पायलट कर लेते हैं, बिकॉज पैंडेमिक के दौरान स्कूल्स कम खुल रहे थे, बीच बीच में खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, तो हमने पायलट किया. तो कुछ स्कूल्स में जब हमने पायलट किया तो इसकी और अंडरस्टैंडिंग बनी. जैसे 1,000 रुपये पहले हमने सीड मनी सोचा था, तो अब हमने इसको 1,000 की जगह हर बच्चे को 2,000 रुपये सीड मनी कर दिया, ताकि 10 बच्चे ग्रुप बनाए तो 20,000 रुपये लेके जाकर किसी इंडस्ट्री में काम कर सकें. दूसरा हमने सोचा था कि हम हर बच्चे को कहेंगे कि आपका पैसा है. अभी हमने इसको उलट कर दिया कि हर बच्चे को हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है तो आप अपना ग्रुप बनाइए और पिच करिए. आप पिच करोगे तभी जीतोगे. तो ये काफ़ी चेंजेस हमने किए. तो ये इसका पायलट हमने किया 2019 में, 19-20 में बेसिकली, और उसके पायलट से जो लर्निंग निकल के आई, फिर 21-22 में हम इसको फुल फ्लेजेड लॉन्च कर रहे हैं. All the best for that. But you've been trying these interesting offbeat things, the introduction of the happiness curriculum, all of that with the Aam Aadmi Party, trying to grow students who are analytical, critical thinkers. But given your focus on education, one has to ask then, how come if schools are closed, ये सब कब होगा, कैसे होगा? Many are saying कि Delhi students lost 3-4 months from June to October when the air was better, the COVID cases were down. Schools नहीं खुलेंगे तो ये सब आप कैसे सिखाओगे आपके इतने फैंटास्टिक करिकुलम? I 100% एग्री विद यू. स्कूल्स अगर बंद रहेंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है. बिजनेस बंद रहता है तो थोड़ा सा फिर भी क्वांटम है उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, इतना लॉस हो रहा है. स्कूल बंद हो रहे हैं तो उससे जितना लॉस हो रहा है उसको तो आप क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते. उसका इम्पैक्ट, कैस्केडिंग इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन पे बहुत पड़ेगा. इसलिए आई हैव बीन ऑलवेज पिचिंग कि नहीं, आप स्कूल खोलिए. बट वट एवर वी हैव बीन डूइंग, वी हैव बीन वर्किंग ऑन द expert advice who are advising government of India also, who are advising us also, कि मतलब as an administrator of schools मेरे लिए तो सबसे हैप्पी सिचुएशन है कि स्कूल खुले रहें. लेकिन अगर वो ठीक नहीं है, उसमें कहीं कोई सिचुएशन में एक्सपर्ट की राय में लगता है कि स्कूल अभी बंद रखने चाहिए, खतरा है, तो आई थिंक वी हैव टू अवॉइड बाय दैट आल्सो. सो इट्स अ बैलेंसिंग सिचुएशन, बट आई नो वी आर एट लॉस. But we have to create priority wise. It seems like Delhi government would prefer to have malls open, liquor shops open, but not schools for our kids. Oh, wow, you agree? Okay. I wanted to ask you also, sir. Now schools have had to close because of pollution. I'm sure you've heard called B11529. It's been identified in South Africa. They're calling it a cause of serious concern. Does the government have a plan? Is it too early? What is? लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट्स. अभी ये भी नहीं पता कि वैक्सीन नॉन वैक्सीन इस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे, और कितना इफेक्टेड है, कितना डेडली है. No, it's very early stages. It's just breaking today. We all have to cross our fingers कि पिछले बार के एक्सपीरियंस को देखते हुए we can't say कि let's see when it comes. No, we have to prepare. So all the alarms are on. गवर्नमेंट के लेवल पे सारे रिव्यू होने लगे हैं, और we want to be ready before it actually creates any alert on ground. और साथ साथ में बिकॉज ये पूरे देश की बात है, तो मेडिकल एक्सपर्ट्स इस चीज़ को जो बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, सबने बहुत कुछ सीखा है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी सबने सीखा है. तो जो भी उनकी एडवाइस होगी, वी हैव टू गो बाय दैट. बट आई नो स्कूल लॉकडाउन, मार्केट लॉकडाउन, सिटी लॉकडाउन्स, आई विश कि ना होना पड़े. Okay, lastly, you're fighting on many fronts. You also have Punjab. The Chief Minister is in Punjab as we speak, pushing hard to expand AAP's turf. So lastly, our reporters have also reported on the ground that there's a lot of goodwill for AAP. But on the day of voting, who are they going to vote for if you don't have a Chief Minister's face? We'll do that. We'll announce the Chief Minister's face. Don't worry. That's happening soon. Certainly we'll do. All right. Manish Sisodia, thank you so much for your time. Thank you.